गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 543 इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो डायमेंशनलेस होता है, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट है एसआई यूनिट, तो इट इज़ ए यूनिटलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट मैग्नेटिक परमिएबिलिटीज, तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज, तो ये म्यू नोट होगा। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ये आ जाएगा आपका, म्यू नोट का होता है mL/t-2 एम्पियर-2। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज, तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स हो सकता है या न्यूटन एम्पियर-2, दोनों ही करेक्ट हैं, सो थर्ड आ जाएगा। Next is a satisfactory understanding of magnetic phenomena was arrived at, तो it was around 1800 AD, तो 1800 AD के आसपास था ये। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोइटेशन ऑफ द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, पोस्ट डेट्स, तो प्री डेट्स आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोइटेशन मतलब इसको हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, इसको बिना समझे 2000 साल पहले ही। क्योंकि फैक्ट क्या है कि जब हम यूनिवर्स में ह्यूमन जो है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, तो उसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं, थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, वो बाद में बने। पहले हमने उसको यूज़ करना सीख लिया। तो जैसे कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है, तो इसके जो एकेडमिकली या जो थ्योरीज हैं वो बाद में आए। बट हमें इतना पता था कि मैग्नेट को यूज़ करके आयरन को खींचा जा सकता है, तो हमने उसको यूज़ करना पहले ही सीख लिया था। तो इसका जो टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोइटेशन है वो लगभग 2000 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था। तो सेकंड इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एप्लीकेशन। इट्स नॉट नेसेसरी, यहीं से प्रूव होता है कि अगर आपको केवल उसको यूज़ करना है तो उसको आप साइंटिफिक, साइंस इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग and technology is its use. So technology is more important than science, although science is the basis for development of technology. But once you develop something, so you just need to use that, and for that use, we don't need to invest much of time and energy into the depth things. You just decode certain protocols, certain observations, certain facts. You just decode the way how universe is operating, how certain things are actually working, and just make use of those things. So that is technology. So it's not a necessary condition for engineering applications. So much necessity is not needed over here. So that is the second thing. Second will be correct. Next, ideally, science and engineering does not go hand in hand, or they go hand in hand. So they actually go hand in hand because science is the starting process behind engineering, and engineering is the you can say that it's a offspring of science, we can say that. And offspring is more important than the parents itself as per development is concerned. So the second will be correct over here. Next is magnetic monopoles does not exist. Second आ जाएगा. Next, if you slice a magnet is half, so you get two smaller magnets. So second आ जाएगा. Next, isolated poles does not exist. First होगा. The smallest unit of charge is E. Next is E equals, so this is 1.6 10⁻⁻19 coulomb. Second correct होगा. Next, all other charges are, these are integral multiple of electronic charges. Second will be correct. Next charge is, it is quantized. So second option will be correct. Next is magnetic monopoles do not exist. Second is correct. Next, a consequence of the fact that magnetic monopoles do not exist is that magnetic fields are continuous and they form closed loops. So both are correct. So third आ जाएगा यहाँ पे.
नेक्स्ट इज electrostatic line of force begin on positive, terminate on negative, fade out infinity. So all these are correct, so fourth option will be correct over here. Next is the earth's magnetic field is due to huge magnet. It's basically not due to huge magnet, it's due to the circulating fluids. So second option will be correct here. Next, earth's core is hot, molten, so दोनों ही हैं, थर्ड आ जाएगा इसमें. Next is the responsible factor for earth's magnetic field is conductive currents और convectional currents, तो दोनों ही हैं इसमें. तो इसमें convective currents आएगा बिकॉज जो फ्लूड है, फ्लूड में कन्वेक्शन की वजह से ही यहाँ पे करंट आता है. तो ये इसमें यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट आ जाएगा एज पर गिवन इन एनसीईआरटी. तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर. सो सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज कंडक्टिव कन्वेक्शनल करंट इन अर्थ कोर इज सस्टेन्ड बाय. सो ये डायनामो इफेक्ट है, थर्ड आ जाएगा. नेक्स्ट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस इट्स पोलैरिटी आफ्टर. तो ये चेंज हो जाता है, लगभग मिलियन ईयर्स इसमें समय लगता है. थर्ड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, अ मिनिस्क्यूल डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ चाई यील्ड्स सेम मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट. तो जाहिर सी बात है कि जैसे डायमैग्नेटिक का नेगेटिव है, पैरामैग्नेटिक का पॉजिटिव है, फेरो का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो डिफरेंस होगा ही. सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो नेगेटिव होता है, फर्स्ट आ जाएगा. पैरामैग्नेटिक का पॉजिटिव होता है, सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म एग्जिस्ट इन तो सुपर कंडक्टर्स हैं, सो ये आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट इज so next is superconductors are these are actually metals at very low temperature. so second आ जाएगा. next, for perfect diamagnet तो चाहे -1 होना चाहिए, सेकंड आ जाएगा. next is for perfect diamagnetism so mu r 1+ चाहिए है तो 0 आ जाएगा, फर्स्ट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, फॉर परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म तो म्यू होता है μr+1, तो म्यू भी आपका 0 आ जाएगा, μr × μ0 होगा, 0 आ जाएगा. नेक्स्ट, फॉर परफेक्ट डायमैग्नेट फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली एक्सपेल्ड होता है, तो सेकंड आ जाएगा क्योंकि फील्ड 0 है अंदर. नेक्स्ट, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म मटेरियल्स आर, तो दीज आर परफेक्ट कंडक्टर्स, सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट, regarding perfect diamagnetism and superconductivity there exist classical theories which ties those property. so there so यहाँ पे कोई थ्योरी ऐसी नहीं है, बट ये कोरस्पॉन्ड तो करते हैं, तो सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट, दीज थ्योरीज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय. जो क्लासिकल थ्योरीज तो नहीं है, लेकिन एक BCS थ्योरी है, ये इसको एक्सप्लेन कर सकती है. सो 578 में सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट, BCS थ्योरी इज इट्स अ क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बार्डिन, कॉपर, श्रीफर, तो ऑल ने दिया था, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज BCS थ्योरी वाज प्रपोज्ड. So this theory was given in 1957 में दिया गया था, और इसे नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1970 में, फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस इज रेमिनिसेंट ऑफ सिमिलर बिहेवियर इलास्टिक प्रॉपर्टीज. यस, इट इज सिमिलर बिहेवियर एज द इलास्टिक प्रॉपर्टीज. तो जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेम बिहेवियर ही शो करता है, तो फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट, रिगार्डिंग इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल strain must be proportional to strain, तो may not be proportional.